So, hello everyone, welcome to our next session on Boolean algebra. And today we'll be seeing about some of the popular Boolean circuits or digital circuit to be precise. And in in this, let us try and find out how some of the famous Boolean circuits work. Okay, so we'll be seeing only about combinational circuits, and these are nothing but how different combinations of basic logic gates are assembled to form these kind of circuits. That is an informal definition. As a formal definition, you may write it down that a circuit which are having some input, some of the input lines, some output lines, in which output only depends upon the present input. Okay, so these are called combinational circuits. So you won't find any memory elements. So the previously stored information also makes a deciding works as a deciding factor on the current output. Okay, so in combinational circuit, current output is only dependent on the current input. Okay, it won't be dependent on any of the previous state of the memory. Okay, so how combinational circuits are designed, so let us try to understand with an example. Okay, so first of all, you will have to identify the input and output lines. So here we have input x and y, and on the right side we have output, that is carry or sum. Okay, so before discussing these circuits, let us first have an insight on what is an half adder. Okay, so in like in decimal, if you add 0 and 1, okay, so you'll get 1 as a sum, and there won't be any carry going outwards. Okay, so 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. Okay, so similarly 1 0 will also yield the same result. 1 and 0 will also yield the same result, that is 1. 0 0 का सम क्या आएगा, 0 0 का सम क्या होगा, 0, and again there will be no carry going outwards. Okay, but what if you'll add 1 1? Okay, so suppose 1 1 is 2, but in binary there is no 2. Okay, there are only two digit, 1 and 0. So in binary, in order to write down 2, you will have to write 0 as sum and 1 as carry. So you will understand that 1 0 stands for 2 in binary. Okay, so इसी क्रम में देखें अगर, तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट रो. ओके, 0 0 अगर आपका सम, आप 0 0 को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, कैरी विल बी 0 एंड सम विल बी 0. बट व्हाट इफ वी आर ट्राइंग टू ऐड 0 and 1, you will get sum as 1 and carry will be 0. Again again if you try to add 1 0, you'll get sum as 1 and carry as 0. And then if you try to add 1 1, you'll get sum as 0 and carry as 1. Okay, so now what, अब हमने ट्रूथ टेबल बना ली है. ओके, सो आफ्टर वी हैव मेड ट्रूथ टेबल, okay, will solve this, will minimize these outputs, and we try to find out an expression for output in terms of input. ठीक है, तो जैसे हमें सम के लिए एक्सप्रेशन चाहिए. ठीक है, सम के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जितने भी इनपुट हैं, ठीक है, उसको एक साइड में रखेंगे, और सम की जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उसको एक साइड में रखेंगे. अब ये आपका होगा आई मीन इनपुट, और ये होगा आपका आउटपुट. ठीक है, अब इसको हम के मैप से या किसी भी अन्य तरीके से हम इसकी सर्किट को सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई ऑलरेडी हैव एन एग्जांपल सर्किट, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. सो आई एम क्योंकि नोट्स में इस पे ढंग से आई मीन थोड़ा ब्रीफली सॉल्व किया गया है, तो यहाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ. ओके, तो
वहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे इनपुट आपका क्या है ए एंड बी, आउटपुट आपका क्या है सम एंड कैरी। ओके, तो विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी इन टर्म्स ऑफ इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया सम के लिए क्या करेंगे, सम वाले जो बिट हैं उसको आउटपुट मानेंगे और इसको हम इनपुट मानेंगे। ठीक है, अब सम के लिए हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज फॉर सम। ठीक है, और वो कैसे काम कर रहा है। ओके, तो सम में हम देखेंगे सम इज 0 0 के लिए सम आपका है 0, तो 0 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सम की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, वी लेफ्ट दिस पार्ट। ठीक है, ओके, अब 0 1, 0 1 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ए कॉम्प्लीमेंट यानी दिस रो एंड बी मतलब दिस कॉलम, तो वो कहाँ पे आएगा, इधर। ठीक है, तो दिस विल बी प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे सम की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे 1 मार्क करेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर 1 0 मतलब ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के लिए सम की वैल्यू विल बी 1, तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे सम की वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। और 1 1 के केस में क्या होगा, ए बी, ए बी। ठीक है, ए बी के केस में यहाँ पे 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, गॉट इट। अब आप देखिए, तो ये क्या सिचुएशन है आपकी यहाँ पे, तो ये हमें एक के मैप मिल गया। ठीक है, फॉर एस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ना तो ये दोनों जो सेल हैं वो एडजेसेंट सेल नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट सेल की डेफिनेशन क्या थी जब हमने के मैप डिस्कस किया था, ट्राई एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंपली जो है जैसे है, अगर पेयर कॉर्ड ऑक्टेट कुछ नहीं बन रहा है तो जो जैसे है वैसे लिखेंगे, तो दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको एक्सआर आई थिंक बताया नहीं है, ये आपका एक्सॉर गेट होता है। ठीक है, एक्सॉर गेट, इसको एक्सॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, अब तो दिस विल बी इक्वल्स टू सम। ठीक है, तो हमें जो दो आउटपुट लाइन थी सम एंड कैरी, तो हमें सम के लिए एक्सप्रेशन मिल गया है। तो अगर हमें सम के लिए एक्सप्रेशन मिल गया है, सो वी कैन इम्प्लीमेंट इट वाया गेट। क्या करना पड़ेगा, पहले ए को हम एक नॉट गेट से गुजारेंगे और उसके साथ बी का एंड ऑपरेशन कर देंगे। सिमिलरली बी को एक नॉट गेट से गुजारेंगे, जो आएगी वैल्यू उसका ए के साथ एंड ऑपरेशन कर देंगे, और फिर इन दोनों का और कर देंगे, इन दोनों का और कर देंगे। तो विल बी सेइंग सर्किट इंप्लीमेंटेशन जस्ट इन अ बिट। उससे पहले जरा हम कैरी का भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैरी में क्या होगा, आप देखोगे, आप देख पा रहे हो कैरी कहाँ पे 1 है, सिर्फ यहाँ पे एक पोजीशन पे, और कौन कौन सी, वो भी ए बी। ठीक है, तो ए बी पोजिशन पे 1 है, और इसलिए कैरी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू ए बी, सी इक्वल्स टू ए बी, सी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो हमें सम और कैरी के एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ वी कैन सिंपली इम्प्लीमेंट इट वाया द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गेट डायग्राम, गेट लेवल डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, ए और बी को हमने डायरेक्टली ले लिया यहाँ पे एक्सॉर गेट में। ठीक है, ये आपका सम का एक्सप्रेशन हो गया, और ए और बी को हमने एंड गेट में डाल दिया, ये आपके कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाफ एडर। ठीक है, ये आपका हाफ हेडर हो गया। दूसरा कौन सा तरीका है, हम इस एक्सॉर गेट को डायरेक्टली डायरेक्टली एक्सॉर ना लिख के हम इसको सिंपल एंड और नॉट गेट के फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट गेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
So this was your half adder circuit, and now we will be moving towards our ब्रीफ इम्प्लीमेंटेशन। नोट्स पे आते हैं अगर, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा था और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बट यहाँ पे के मैप नहीं बना हुआ था। सो आई स्विच टू अनदर साइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाफ हेडर। तो आपको तरीका समझ में आ गया। कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, आप उसका इनपुट एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, आउटपुट एक तरफ लिखेंगे, और क्या होगा, आउटपुट में जितने भी बिट्स हैं उनको आउटपुट मानकर उनको इस पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब मिनिमाइज करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग के मैप और एनीथिंग एल्स। तो के मैप ज़्यादा सुविधाजनक है, तो हम के मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जब आप के मैप से इनको सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट जो बिट है उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। आउटपुट में हमारे दो चीजें थी, सम और क्वेरी, उसका एक्सप्रेशन मिल गया। एक बार जब आपको एक्सप्रेशन मिल गया फिर क्या है, फिर तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उसको इनपुट और आउटपुट मान के आप अपना इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ हेडर, ठीक है। हाफ हेडर में अच्छा, तो अगर मैं कहूँ आपसे हाफ सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए तो क्या करना होगा, ठीक है। वहां पे सम और कैरी की जगह पे बोरो एंड डिफरेंस होगा, ठीक है। तो बोरो और डिफरेंस के लिए क्या होगा, हम सिर्फ ट्रूथ टेबल बता देते हैं, एक्सप्रेशन आप लोग के मैप की सहायता से खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जीरो में से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, डिफरेंस विल बी जीरो एंड बोरो विल बी जीरो, ठीक है। फिर वन में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस विल बी वन एंड बोरो विल बी जीरो, ठीक है। वन में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, बोरो भी जीरो और डिफरेंस भी जीरो, ठीक है। लेकिन एक पिक्यूलियरिटी है इसमें, क्या है, अगर जीरो में से वन घटाया तो क्या होगा, बोरो विल बी वन एंड डिफरेंस विल बी वन, ठीक है। अब आपको ट्रूथ टेबल मिल गया। बोरो और डिफरेंस के लिए आप के मैप बनाओगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, उनके एक्सप्रेशन फॉर्म करोगे, और जब सर्किट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की सर्किट आएगी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम है एज इन केस ऑफ सम हाफ एडर के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस को हम सिंपली एक एक्सॉर गेट से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोरो के केस में क्या है, बोरो के केस में क्या है, बोरो के केस में क्या है, ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंगली वो क्या है बेसिकली, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ठीक है। तो एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई, इसका हमने एंड कर दिया, तो ये आपका बोरो का एक्सप्रेशन हो गया। तो इस प्रकार से आपके सम और कैरी बन जाएंगे, ठीक है। अब फुल एडर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको बता देता हूं कि करते कैसे हैं, एंड देन आप अपने से करेंगे, और डाउट सेशन में हम नेक्स्ट वीक में जब भी रखेंगे बुलियन अलजेब्रा का डाउट सेशन, आप बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स और वाई तो आपके दो बाइनरी डिजिट को हमें ऐड करना ही है, ठीक है। लेकिन हम उसमें एक और चीज क्या लेते हैं, प्रीवियस कैरी, ठीक है। प्रीवियस कैरी भी लेते हैं, तो इससे आपका ये फुल एडर बनेगा, ठीक है। तो आप दो डिजिट ऐड करोगे, आप चाहो तो जेड को मान लो कैरी या एक्स को कैरी मान लो, डजेंट मैटर। कुल मिला जुला के आपको प्रीवियस कैरी प्लस टू करेंट बाइनरी डिजिट ऐड करने हैं, ठीक है। सम यहाँ पे आएगा और कैरी यहाँ पे आएगी। अच्छा, वर्स्ट केस में क्या होगा, आपका दो डिजिट जो ऐड करने हैं वो वन वन हो सकते हैं, और कैरी भी आपका वन हो गया, ठीक है। तो तीन बाइनरी बिट्स को ऐड करने पर सम क्या आएगा डेसिमल में, थ्री, और जिसकी बाइनरी में वैल्यू क्या हो गई, वन वन, ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको सम के लिए एक बिट्स और कैरी के लिए सिर्फ एक बिट चाहिए होगा, ठीक है। मान लो अगर हम चार बिट ऐड कर रहे होते तो क्या होता, चार बिट में वो चारों बिट हो सकता है वन हो, ठीक है। इन दैट केस आपका सम आ जाएगा फोर, जिसकी बाइनरी में वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन जीरो जीरो। इन दैट केस हमें इनपुट में तीन बिट लेने होते हैं, लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप तीन तीन बिट को ऐड करने में, ठीक है, हमारा सम और कैरी सिर्फ दो बिट आउटपुट में काम चल जाएगा, इसलिए हम सिर्फ सम और कैरी ले रहे हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से हम सम और कैरी का एक्सप्रेशन, अब ये कैसा मैप बन गया, के मैप बनेगा 3 वेरिएबल के मैप, सम और कैरी को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे के मैप दिया हुआ है, जस्ट वेरीफाई दिस, और ये आपका सम और कैरी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको गेट फॉर्म में इंप्लीमेंट कर देना है। फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होगा कि आप एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट करोगे, और एक पहले से ही हम मान के चलते हैं कि एक बोरो है, उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसी स्थिति हो जाएगी, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो अभी भी हमारा काम डिफरेंस एक बिट और बोरो एक बिट में काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम ऐसे ही सेम वे में के मैप बना सकते हैं और एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये एक्चुअली थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आई विल एनकरेज यू टू वर्क ऑन हाफ हेडर, और कैसे दो हाफ हेडर की सहायता से फुल हेडर बनाए जाते हैं। आई थिंक ये आपके सेकेंड यूनिट में होगा इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ से वो चीज़ें देखो, और जो नहीं समझ में आता है आई विल एनकरेज यू टू आप अपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर से पूछिए, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सिलेबस इधर डिजिटल सर्किट में ज़्यादा डेल्व होने को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ओके, वेल दिस वुड हैव बीन पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्लास, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ कर देता हूँ आपको, ठीक है। डिकोडर क्या होता है? डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच जनरेट्स 2 to the power n और लेस नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इनपुट 2 बिट का है, ठीक है, अगर हमारा इनपुट 2 बिट का है, ठीक है, फॉर दैट केस n वुड बी 2, would be 2, तो we can we can generate we can generate 2 to the power 2 और लेस नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। 2 to the power 2 मतलब कितना हुआ, 4, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए हम 4 या 4 से कम आउटपुट लाइन जनरेट कर सकते हैं। तीन तीन बिट के लिए क्या होगा, 8 और लेस, तो 0 to 8 लाइन्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग 3 इनपुट्स, ठीक है। अगर हमारे पास चार अगर हमारे पास 4 सिलेक्शन लाइंस हैं तो 0 टू 6 0 टू सॉरी ये 0 to 8 नहीं होगा, बल्कि 0 to 7 होगा, ठीक है। 0 to 7 तभी वो आपका क्या होता है, तभी वो टोटल 8 होगा, ठीक है। तो 4 बिट सिलेक्शन लाइन के लिए क्या हो जाएगा, 0 to 15 एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड, 0 to 15 मीन टर्म्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे 2 बिट है ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, ए बी से रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं हमें सब कुछ जनरेट करना है, ठीक है। यानी कि वी विल हैव टू जनरेट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, a complement b complement, will have to generate a complement b, a complement b will also have to generate ab complement, ab complement, and finally ab, ab, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंड गेट है उसमें आप ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और यहाँ पे लाइन दी गई है, इनेबल लाइन, ठीक है। इनेबल लाइन अगर 0 है तो ये कोई भी गेट काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इनेबल लाइन को स्किप करके देखें तो ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एंड गेट में क्या वैल्यू गई है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरे लाइन में आप ध्यान से देखिए तो क्या गया है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या गया हुआ है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली चौथे एंड गेट में ए एंड बी, ठीक है। तो डिकोडर का काम क्या है, सिर्फ लाइनें जनरेट करना। डिकोडर विल जनरेट ऑल द मिन टर्म्स, ठीक है, पॉसिबल फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन लाइन कितने लिए थे, 2 बिट के लिए थे, तो 2 से आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 0 0, वही यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अगला 0 1 यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी। अगला
10 यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली लास्ट वाला 11 यानी कि ए बी। ठीक है, तो डिकोडर का यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, अच्छा, इसमें ए और बी की कोई भी आप वैल्यू दे दो, जैसे ए और बी को हमने सपोज करो 10 दे दिया। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइनें एक्टिव होंगी? ये लाइन, और बी 0 है तो ये लाइन। ठीक है, अब तो 10 का मतलब क्या हुआ? 10 का मतलब 2, 2 मतलब दिस। तो एट अ टाइम सिर्फ सेकेंड वाला गेट, अगर हम ए बी में 10 देंगे तो सिर्फ सेकेंड वाला गेट एक्टिव होगा और ये लाइन एक्टिव होगी। ठीक है, ऐसे ही ए और बी की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो हमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही एंड गेट है जो एक्टिव मिलेगा। तो इसका फायदा पता है क्या होता है? इसका फायदा होता है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसे कई सारे लोकेशंस होते हैं। ठीक है, और आपका काम क्या होता है? मेमोरी का काम, एट अ टाइम आप एक ही लोकेशन से डेटा रीड या राइट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होगा कि आपको मेमोरी का लोकेशन प्रोवाइड करना होगा। और मेमोरी का लोकेशन आप कैसे प्रोवाइड करते हो? यही ए और बी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की हेल्प से। ठीक है, तो सपोज करो अगर हमने ए और बी दोनों में 0 0 दे दिया तो क्या होगा? कौन सा मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगा? बिल्कुल पहला वाला। ठीक है, इसीलिए आपने एरे में देखा होगा, एरे की इंडेक्सिंग 0 to n-1 तक होती है। ठीक है, ये कभी सी में आपके ध्यान में, जहन में आया होगा कि मेमोरी लोकेशन 1 to n क्यों नहीं जाती है? हम 0 to n-1 क्यों लेके चलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये एड्रेसेस होते हैं, और एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक है, और 0 से क्यों स्टार्ट होता है? यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो डिकोडर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ भी आपको सिलेक्शन टाइप के काम करने होते हैं, आउट ऑफ सर्टेन कॉम्बिनेशन यू विल हैव टू सेलेक्ट ओनली वन। ठीक है, तो वहाँ पे डिकोडर का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है कि ये सारे मिन टर्म जनरेट करता है। ओके, तो आप इससे कोई भी दूसरी डिजिटल सर्किट भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी वो हमारे स्कोप डिस्कशन के बाहर होगा, तो आई कांट गो इनटू दैट। ठीक है, फिर भी एक चीज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो मान लो ये हाफ एडर है। ठीक है, हाफ एडर में क्या होगा? अभी आपने ऊपर देखा सर्किट कैसे बनती है, और डिकोडर का काम क्या है? ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे जनरेट करता है। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी। ठीक है, और सम और कैरी का एक्सप्रेशन आपका ये हो गया। सम में ये दोनों 1 1 है और ये 0। ठीक है, तो सम में आपको क्या क्या दिख रहा है? सम कहाँ कहाँ पे 1 है? सिर्फ तब जब आपका x और y डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट x और y ए बी जो वैल्यू है वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आपने एग्जॉर कर लिया। ठीक है, ये एग्जॉर नहीं होगा, बेसिकली ये सम और गेट होगा। जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट। ओके, ये एग्जॉर नहीं होगा, ये सिर्फ आपका और गेट होगा। ओके, तो बाद में ये नहीं कहना कि ये कैसे हो गया, है ना? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है बनाते समय। ओके, तो ये आपका और गेट हो गया। और कैरी क्या है? कैरी सिर्फ एक जगह पे 1 है। कब? जब ए और बी दोनों 1 हो, या एक्स और वाई दोनों 1 है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक्स वाई लिखो, या तो इनको एक्स वाई कर लो, या तो इनको एक्स वाई कर लो, या इनको ए बी कर लो। इन्हीं को ए बी कर लो, देर इज नो एक्स वाई। ठीक है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो कैरी कब होगा एक्टिव? जब सिर्फ आपका ये दोनों एक्टिव होंगे, ए और बी। ठीक है, तो कैरी के लिए सिर्फ एक लाइन निकाल दी, लास्ट वाली। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हाउ डिकोडर इज यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग ऑलमोस्ट एनी सर्किट इन टर्म्स ऑफ जिनमें मिन टर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब उसी का उदाहरण आपके सामने है कि कैसे एक फुल एडर को हम यूजिंग 3x8 डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तो आपने देखा सम ऑफ द पॉपुलर सर्किट वी हैव सोन यू, वी हैव डिस्कस्ड क्या क्या था उसमें। हमने देखा क्या? डिकोडर, उसके पहले हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एंड कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने का तरीका क्या है। ठीक है, एक एक्चुअली
if you want we can discuss multiplexer also, but I think it would be another domain. Okay, so I am skipping demultiplexer and multiplexer part, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस की चीज बाहर की चीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ डिजिटल सर्किट्स लिखे हुए थे, तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया आपको, दैट हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज सर्किट्स. ओके, so have a look on these circuits, circuit minimization and all the other topics that we have covered. ठीक है, उसमें आपका क्या क्वेश्चन है, लेट मी नो, और नेक्स्ट टाइम पे जब हम उनको डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में. ओके, so from my side I am ending this unit 3. ठीक है, इसमें से आप सिलेबस भी वेरीफाई करके देख लो दैट कौन सा टॉपिक रह गया यूनिट 3 में जिसको अभी भी कवर करना बाकी है, या क्या बुलियन अलजेब्रा में ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है. तो आई हैव नो इश्यूज, आई हैव नो प्रॉब्लम्स. ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं ये आपका वीकेंड का टाइम दे रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या ट्यूसडे में हम एक डाउट सेशन रख लेते हैं, और आप बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, इनफैक्ट बुलियन अलजेब्रा एंड लैटिसेस, तो वो आप डाउट कंप्लीट कर लो. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड में, यानी अगले वीक में आफ्टर डाउट सेशन, हम इसका एक टेस्ट भी रखेंगे. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम उस यूनिट का टेस्ट भी रखेंगे. फर्स्ट यूनिट का टेस्ट अभी नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी आप इसमें देख पा रहे हो नेचुरल नंबर वाला पोर्शन बाकी है. ठीक है, तो मैं देखता हूँ उसको कब कवर करते हैं. तो मोटा मोटी जो है आपका 3 यूनिट्स जो है कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, 1 से 2 लेक्चर की चीज़ें हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स, और वो मैं चेक कर लेता हूँ. आई थिंक अनुराग सर हैव डिस्कस दिस थिंग. तो ऑब्वियसली उनके लेक्चर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अगर वो मुझे लेवल के लगेंगे तो आई विल रिकमेंड इट टू यू. ओके, तो मीनवाइल आप लोग बुलियन अलजेब्रा रिवाइज करिए, एंड आफ्टर द डाउट्स यू आर गेटिंग, आप नेक्स्ट वीक में उनको पूछो, और उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे. ओके, तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड विल मीट इन. हाँ, इसके बाद जो है हम अभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर स्किप करेंगे और ट्री और ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी आप लोग वही डिस्कशन चल रहा होगा. ओके, तो हमारा डबल डिस्कशन है, हम अवॉइड करेंगे. ओके, तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.